Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. So far in the classification of markets we have discussed perfect markets और perfect markets में एक important market होता है जिसे हम perfect competition कहते हैं. We have already discussed that. Now let's move to another type of market, that's imperfect market. देखिए जो imperfect markets होते हैं, these are imperfect in the sense that there is lack of perfect knowledge. And same price does not prevail. There is ignorance on the part of buyers as well as sellers regarding the nature of the commodity, regarding the price of the commodity and other features. इस वजह से इसे imperfect कहा जाता है, क्योंकि जो बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी परफेक्ट मार्केट्स में वो इनपरफेक्ट मार्केट्स में अवेलेबल नहीं होती है. ठीक है ना. तो इम्परफेक्ट मार्केट्स में हमने 4 टाइप्स के मार्केट्स डिस्कस करने हैं. वी हैव टू डिस्कस मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिओपोली and oligopoly. These are imperfect markets. Monopoly, monopolistic competition, duopoly and oligopoly. Let us first of all discuss monopoly. देखिए मोनोपोली भी एक मार्केट सिचुएशन होती है जिसमें सिंगल सेलर होता है. कितने सेलर्स होते हैं? सिंगल सेलर होता है ऑफ ए प्रोडक्ट. और जहाँ तक ओरिजिन का ताल्लुक है, मोनो मीन सिंगल एंड पोली मीन सेलर. नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें सिंगल सेलर होता है ऑफ ए कमोडिटी जिसके कोई सबस्टिट्यूट्स नहीं होते. There is a single seller of a product with no close substitutes in the market. Suppose there is one firm in dealing with the sale of cooking gas. एक एग्जाम्पल है लेते हैं हम. कुकिंग गैस की सेल के लिए आपके इलाके में सिर्फ एक फर्म है. राइट. यू गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम वन एजेंसी, that's the electricity board. You can travel by railways owned by and run by the government of India alone. All these are examples of monopoly. रेलवे एक सिंगल फर्म है. अगर आपके टाउन में सिर्फ एक सप्लायर ऑफ डीलर ऑफ गैस है तो उसके पास मोनोपोली है. इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक एजेंसी आपको प्रोवाइड करती है. So these are the examples of monopoly. The situation of market where a single firm controls the entire market. ये पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है. Controls the production of a commodity. When there is a single seller for a commodity, when there is a single firm producing a commodity, it's monopoly. Right? तो simple words में हम कह सकते हैं कि monopoly is a market situation in which there is only one producer of a commodity with no close substitutes. Right? कोट्सियन एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो मोनोपोली है, monopoly is a market situation in which there is a single seller. There are no close substitutes for the commodity it produces. There are barriers to entry. There are barriers to entry. यहाँ barriers होते हैं. There is no free entry and exit of firms. Right? Like other markets, we can have a better understanding of monopoly when we study or discuss its features. और इसके features क्या हैं? The important ones are one seller, single seller जिसे हम कहते हैं, and large number of buyers. This is the first feature of monopoly. So in monopoly there should be a single seller.
single producer of a commodity. He may be alone or there may be a group of partners, जिसे proprietorship कहते हैं. It could be a joint stock company or state, right? ऐसी सूरतों में हमारे पास मोनोपोली हो सकती है. Thus there is only one firm under monopoly. लेकिन जहां तक बायर्स का ताल्लुक है, द नंबर ऑफ बायर्स इज लार्ज. रेलवे में कितने लोग ट्रैवल करते हैं? बहुत सारे. हाउ मेनी कंज्यूम गैस? लार्ज. सो द बायर्स आर लार्ज बट द सेलर इज वन. कॉन्सिक्वेंटली जो सेलर्स बायर्स होते हैं, they cannot influence the price of the product because they are large but the seller is single. This is the first feature of monopoly. Second is, in case of perfect competition, there was free entry and exit of new firms, but here there is no entry. There are restrictions on the entry of new firms. Under monopoly, there are some restrictions on the entry of new firms into monopoly industry. जैसे कि मसलन हम ले सकते हैं कि there are patent rights, कार्टेल्स होते हैं, गवर्नमेंटल लाइसेंसिंग होती है. ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं विच गिव बर्थ टू मोनोपोलीज. और मोनोपोली सिचुएशन में ऐसा, मार्केट सिचुएशन में ऐसा होता है, देयर इज एक्सक्लूसिव कंट्रोल, सम प्रोडक्ट्स गेट पेटेंटेड एंड सम हैव कंट्रोल ओवर टेक्निक्स और रॉ मटेरियल. ठीक है ना? तो इस वजह से मोनोपोली वजूद में भी आती है व्हेन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस on the entry of new firms into the industry. Then one more feature is there are no close substitutes. देखिए, perfect competition में the goods were perfect substitutes, but here the goods that a monopolist produces or a commodity a monopolist produces has no substitutes. इसके सब्स्टिट्यूट्स होते ही नहीं है, राइट? एंड देयर इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. चूंकि देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट, he hides everything from this buyers. No buyer has any information with regard to the price, with regard to the quality, with regard to the quantity of the commodity. क्योंकि मोनोपोलीज को इसीलिए क्रिएट भी किया जाता है ताकि ये सब चीज़ें हिडन रहे. किससे? फ्रॉम द बायर्स, राइट? मोनोपोली इज दैट द मोनोपोलिस्ट हैज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस. Full control over price. Since he is a lone producer in the market or of the commodity, he has full control over price. इसका full control होता है किस पे? प्राइस पे. ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर. परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या थी? प्राइस टेकर थी. बट हेयर चूंकि यहाँ फर्म और इंडस्ट्री के बीच कोई फर्क नहीं है, इट इज़ द सेम थिंग बिकॉज इट इज सिंगल. सो इन केस ऑफ मोनोपोली जो हमारी फर्म है, इट इज़ द प्राइस मेकर. इट इज़ द प्राइस मेकर. द मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेस टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट. ये कोई भी प्राइस फिक्स कर सकता है. एंड वन मोर थिंग, another important feature, there is the possibility of price discrimination.
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है यहाँ पे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो मोनोपोलिस्ट होता है, ही चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। व्हेन डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, इसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस बाय सेलर ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड। मोनोपोली में ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेलवे का सफ़र करते हैं तो आपको एसी क्लास के लिए अलग चार्जिंग होती है, स्लीपर क्लास के लिए अलग, जनरल के लिए अलग। जबकि आप सेम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, थोड़ी सी सहूलियात होती है लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेट होता है। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं, वी आर चार्ज्ड डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक, तो इस चीज़ को हम मोनोपोली कहते हैं। तो मोनोपोली अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द वेरियस फीचर्स लाइक सिंगल सेलर, large number of buyers, restrictions on entry of new firms, no close substitutes, full control over price, and there is possibility of price discrimination. तो आज के लिए इतना है। वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन मोनोपोली इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।